آیت 36 اور اعبدو عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، وعبدوا اللہ اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، اور لا نہ تشرکو شریک بناؤ، ولا تشرکو اور نہ شریک بناؤ، بہی ساتھ اس کے یعنی اللہ تعالیٰ کے، شیئن کسی چیز کو، ولا تشرکو بہی شیئن اور اس کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور بالوالدین اور والدین کے ساتھ یعنی ماں اور باپ کے ساتھ احسان کرو، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور کس کے ساتھ کرو، اور بھی ساتھ ذی القربا، ذی کا معنی ہوتا ہے والے، قربا قریب والے یعنی رشتہ دار، والیتاما اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین مسکین کی جمع، یتیم کی جمع یتاما، مسکین کی جمع مساکین، اور محتاجوں کے ساتھ بھی احسان کرو، والجاری اور ہمسایوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ذی القربا چاہے قرابت والے ہوں یعنی رشتہ دار ہوں، والجار الجنب اور اجنبی ہمسایوں کے ساتھ، جنب کے معنی ہوتے ہیں اجنبی دور والے، والصاحبی اور ساتھی کے ساتھ، بالجنبی جو پہلو پر ہو ساتھ ہو یعنی ساتھ والے جو ہوتے ہیں دوست وغیرہ ان کے ساتھ، اور ابن بیٹا سبیل راستے کا مراد کیا ہے یعنی مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور ماں جو ملکت قبضے میں ہوں، جو قبضے میں ہوں، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ کے، اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں تو سب کے ساتھ کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ احسان کرو۔ پھر احسان کا فائدہ کیا ہے بتایا جا رہا ہے، ان بے شک اللہ تعالی لا نہیں، یحب دوست رکھتا، محبوب رکھتا، محبت کرتا، من اس کو جو کانا ہو، مختالن تکبر کرنے والا، اکڑنے والا، اترانے والا، فخورا بڑائی مارنے والا، بہت زیادہ فخر کرنے والا، یعنی ظاہری چیزوں جیسے مال ہے، عزت، اقتدار وغیرہ پر اترانے والا۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، تو اس میں بتایا جا رہا ہے، پیچھے تو کہا نا احسان کرو، یہاں تک کہ کنیزوں کے ساتھ بھی، ملکت ایمانوں کو، اپنے غلاموں کے ساتھ بھی احسان کرو، کیونکہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ آگے بتایا کہ بے شک تکبر کرنے والے، بڑائی کرنے والے، اترانے والے کو پسند نہیں کرتا یا اس کو دوست نہیں رکھتا۔ وضاحت جان لیتے ہیں، اس آیت کریمہ میں اللہ اور جو بندوں کو حقوق ہے ان کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اللہ کا کیا حق ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی صورت میں بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور بندوں کے آپس میں بھی حقوق ہوتے، جیسے کہ سب سے پہلا درجہ کن کا ہے، والدین کا، یعنی والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کیا ہے کہ والدین کا ادب کریں، اطاعت کریں، نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اور حتی الامکان کوشش کریں کہ خدمت کے لیے ریڈی رہیں، ان پہ خرچ بھی کریں اپنی طاقت کے مطابق، ان کی جو ضروریات ہے اس میں کمی نہیں آنے دینی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، محبوب نے بڑے میٹھے انداز میں سمجھایا، ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ پوچھا گیا کہ محبوبہ کون، کس کی؟ فرمایا جس نے والدین دونوں کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور پھر وہ جنت میں داخل نہ ہوا،
मुस्लिम शरीफ की हदीस तैयबा, जन्नत पाना बहुत आसान, कैसे कि अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा सलूक करें। दूसरे नंबर पे फरमाया कि रिश्तेदारों से और सिला रहमी का हुक्म है इसलिए कि रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक कता नहीं करना चाहिए, उनके साथ हुस्ने सलूक करना चाहिए। इससे मोहब्बतें होती हैं, अमन होता है, सुकून होता है। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि उसके रिस्क में वुसअत हो, उम्र लंबी हो, तो उसे क्या चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। बुखारी शरीफ की हदीस तैयबा, हजरत जुबैर बिन मुताम से मरवी है, महबूब का बोल, रिश्ते काटने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस तैयबा। जरा अपना मुहासबा करते चाहिए, आपका शुमार किन लोगों में होता है, ताल्लुक तोड़ने वालों में या जोड़ने वालों में। जरा एक लम्हा ठहर के सोचिए कि ये गलती है तो चलिए क्या करते हैं, सोलो कर लेते हैं और फिर अहद करते हैं कि हम कतर रहमी नहीं करेंगे, ताल्लुक नहीं तोड़ेंगे। मसरूफियत के सबब ये तो एक अलग मसला है ना, लेकिन हत्तल इम्कान कोशिश करें कि ताल्लुकात आपस के अच्छे रहें। खूबियों पे नजर रखा कीजिए एक दूसरे की, ना कि खामियों पे, या एक आध दफा कोई गलती कर बैठे तो उसी को न छोड़ने बैठ जाया करें, कुछ अच्छा भी तो किया होगा ना। फिर फरमाया यतीमों और मोहताजों से भी हुस्ने सलूक करो, इसके भी बहुत ज्यादा फवायद हैं। माशरे में अमन रहता है और सवाब बेहिसाब। अगर यानी सर के ऊपर हाथ माज मोहब्बत से रखने से भी इसके कितने फवायद होते, मैंने हदीस तैयबा की रूह से आपको बताया था। जितने बाल हाथ के नीचे आते हैं, आपको याद आया? हज़रत साल बिन साद से मरवी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स यतीम की कफालत करेगा वो जन्नत में इस तरह होगा। उंगली से इशारा करके समझाया ना कि जैसे शहादत की उंगली और बीच की उंगली, ऐसे दोनों बराबर कर, इसमें थोड़ा सा फासला होता है ना। महबूब का पड़ोस चाहिए तो आप यतीमों के साथ और मसाकीन के साथ अच्छा सलूक कीजिए। बुखारी शरीफ की हदीस तैयबा सुनाई थी। फिर मिस्कीन के साथ भी अच्छा सलूक करें, उनकी मदद करें, उन्हें खाली हाथ ना लौटाया जाए। हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, रसूलुल्लाह का फरमान, बेवा और मिस्कीन की इमदाद और खबर करी करने वाला राय खुदा में जिहाद करने वालों की तरह है। कितना सवाब मिल रहा है। फिर हमसायों के साथ, चाहे रिश्तेदार हों चाहे गैर रिश्तेदार हों, चूंकि तो घर के साथ घर मिला हुआ होता है तो हमें उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। दूर के रहने वाले रिश्तेदार, उनकी निस्बत जो करीब वाले पड़ोसी होते हैं, उनका हक भी ज्यादा होता है, उनका फायदा भी ज्यादा होता है अगर अच्छे हों। आप बताइए कि आप अच्छे पड़ोसी हैं? अगर हैं तो बहुत अच्छी बात। हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया कि जिब्रील अमीन मुझे पड़ोसी के मुतालिक बराबर वसीयत करते रहे, यहाँ तक कि मुझे गुमान हुआ कि पड़ोसी को वारिस बना देंगे। बुखारी शरीफ की हदीस तैयबा। और फिर छठे नंबर पे आता है कि पास बैठने वालों से हुस्ने सलूक करो। इससे मुराद क्या है? जो करीब तरीन होती है, बीवी। आपका सलूक बीवी के साथ कैसे है? बीवी का अपने शोहर के साथ कैसा है? जरा सोचिए। जो चंद लम्हे भी मुयस्सर आ जाए ना तो अच्छे सलूक किया कीजिए, ये ज्यादा हकदार होते हैं ये रिश्ते। सातवें नंबर पे है मुसाफिर का, इसमें मेहमान भी दाखिल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स अल्लाह ताला और रोज़े क़यामत पर ईमान रखता है वो मेहमानों का इकराम करे और फिर मुसाफिरों के साथ भी अच्छा सलूक करने का हुक्म है। और आठवें नंबर पे कैसे तरतीब से रब्बे करीम समझा रहा है कि लोंडी और गुलाम के साथ भी अच्छा सलूक करो, उन्हें ना हक तकलीफ मत दो, सख्त कलामी से ना पेश आओ,
उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए। और महबूब ने फरमाया, देखो लोगों, गुलाम तुम्हारे भाई हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें तुम्हारा मातहत किए हैं, तो क्या चाहिए तुम्हें चाहिए कि तुम जो खुद खाते हो उसमें से उन्हें खिलाओ भी, इसी तरह पहनाओ भी। उनकी ताकत से ज्यादा काम ना लो, अगर ज्यादा काम हो तो उनकी मदद करो। मुस्लिम शरीफ की हदीस तैयबा मैंने आपको सुनाई। आखिर में फरमाया कि अल्लाह ताला ला युहिब्बु, अल्लाह तो पसंद ही नहीं करता। मौला किसको तो पसंद नहीं करता? जो मुतकब्बिर है, जो फख्र करने वाला है। मुतकब्बिर शख्स दूसरों को अपने से हकीर जानता है ना, और ऐसा शख्स हक बात को भी नहीं मानता। और ये बहुत ही बुरी सिफत कह सकते हैं, वसफ कह सकते हैं, और गुनाह कबीर है। कहीं आप भी तो इसका शिकार नहीं है? अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो ये तो उसका एहसान है ना। अगर इल्म से नवाजा है तो उसी ने सारा कुछ दिया है। तकब्बुर किस चीज का नहीं होना चाहिए ना। और क़यामत के दिन मुतकब्बरीन को इंसानी शक्लों में चींटियों की मानद उठाया जाएगा, हर तरफ जिल्लत तारी होगी और जहन्नम की बुलस नामी कैद खाने की तरफ हांका जाएगा। बहुत बड़ी आग उसे लपेट लेगी, किसको? जो कि मुतकब्बर है, जो कि तकब्बुर करने वाला है। फिर तीनतुल खबाल यानी जहन्नमियों की पीप पिलाई जाएगी। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस तैयबा। और तकब्बुर के तो इतने ज्यादा नुकसानात हैं कि अंदाजा नहीं किया जा सकता। दुआ कीजिए कि मौला करीमा हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगियां बसर करने की तौफीक अता फरमा। दुआओं की दरख्वास्त है।